Hello, welcome to Aapki Khabar. And today we have very special guest with us. And today, on the occasion of Indian Air Force Day, Aapki Khabar brings to you a very inspiring woman who has not only served the nation but has also instrumental in Kargil in Parakram War. Let us welcome Squadron Leader Dimple Rawat. She is an HR professional with 22 years of diverse experience with defense and corporate. She is also a state council member for WICCI UPHR and advisory board for women and women with wings platform. Squadron leader Dimple has served in Indian Air Force for 11 years as SSC officer. There she worked in different portfolios including flight commander, tech flight for the Russian missile system and HR flight commander. She has also participated in Kargil and operation in Parakram wars. Began journey in the corporate with Vanderlande Industries 11 years back where she was heading HR for the past 9.5 years, have been associated with Barco Electronics System Private Limited and works as Associate General Manager HR. She is a strong believer of challenging the status quo and continuously upskilling the team. Her passion is to work for the empowerment of the women in different sectors. Having said this, she has been invited at various platforms to share her journey and experience to enable and uplift lot of students, professionals, and housewives. Also, very active member of AFWWA Air Force Wives Welfare Association for her work. She has been awarded with Women Excellence and two HR Excellence Awards, along with the Global Women Inspiring Award 2021. Her hobbies are traveling and exploring new places, and she is an avid reader. Also, she loves spending quality time with family. Now, again, we are welcoming Squadron Leader Dimple Rawat. And first question, Aapki Khabar viewers would like to know. Let's begin with your childhood. What were your childhood dreams? Did you ever dreamt that you will choose Air Force as a career or play with missiles? So, first of all, Rajiv, thank you so much for this wonderful introduction. And it's my pleasure and honor to be here today in your channel, Aapki Khabar. And on this auspicious day, because today is Air Force Day, and today I'm feeling very nostalgic. Yes. And yes, definitely, I have a lot of good memories, best of my memories from Air Force days. So, your question, did I ever thought about this in my childhood? So honestly, no, because Rajiv, those days I'm talking about 80s and early 90s. This was not a career which was available for women. So definitely, I wanted to do something big. And those days, the career for women were mostly teaching, doctors, and engineers. And even engineers used to be very less. बहुत कम लड़कियां इंजीनियरिंग फील्ड में जाती थी, बट आई ऑलवेज वांटेड टू डू समथिंग डिफरेंट. ये बहुत ही क्लियर था एंड इसके रीजंस थे बहुत सारे. सो लाइक वन ऑफ द रीजन वाज राजीव कि हम तीनों बहनें हैं एंड माय फादर ऑलवेज इंस्पायर्ड अस टू ड्रीम बिग. And that was, but our parents, they never brought us like daughters, so they brought up as individuals. So वहां से भी एक बहुत हमें हिम्मत हमेशा मिलती रही कि हमें बहुत अच्छा करना है लाइफ में, कुछ बड़ा करना है. सो एयरफोर्स में मैं कैसे आई, जब मैं थर्ड ईयर में थी इंजीनियरिंग के, मैं इंजीनियरिंग करने लगी. थर्ड ईयर में मैंने एक एडवर्टीजमेंट देखा जिसमें कि एक वुमेन ऑफिसर यूनिफॉर्म में थी, और उन दिनों नए नए, आई थिंक सेकंड या थर्ड बैच होगा वो. सो वहां मुझे उनको देखकर बड़ा ही फैसिनेटिंग लगा. यूनिफॉर्म में अमेरिका, अब तो ये यूनिफॉर्म पहननी ही है. एंड उसके बाद आई थिंक बहुत हार्ड वर्क किया और उसकी पूरी तैयारी करी, और देखिए सपना पूरा हो गया और मैंने एयरफोर्स ज्वाइन कर लिया. चलिए, बहुत अच्छी बात है. When your dreams came to you, how did you Dimple feel when she turned from a civilian to flying officer? Because it was आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग ये रहा होगा कि एक फ्लाइंग ऑफिसर
और एक सिविलियन, दोनों के बीच में कैसे जो है, मतलब एक्सपीरियंस क्या था आपका? राजीव, मैं सभी को कहती हूँ कि दो मेजर ट्रांसफॉर्मेशन लाइफ में हुए। एक तो व्हेन आई एक्चुअली द फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन वाज व्हेन आई पुट ऑन द यूनिफॉर्म फर्स्ट टाइम। सो सिविलियन टू यूनिफॉर्म वाला जो है, एंड वापस जब मैं दोबारा 11 साल के बाद फ्रॉम अ मिलिट्री पर्सन आई टर्न टू अ सिविलियन पर्सन। सो ये मेजर दो ट्रांसफॉर्मेशन है। बट येस, द फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन जो आप पूछ रहे हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग था। And why it was so interesting? Because I think it changed me totally. It made me a better human being. If I talk about physically, I became very strong. आप ये सोचिए कि फौज से पहले मैं 1 या 2 किलोमीटर मुश्किल से चलती थी। एंड फर्स्ट आउट पास आई रिमेम्बर, जब हम ट्रेनिंग कर रहे थे, हमें जाने के लिए बाहर तभी मिला जब हमने 10 राउंड्स, दैट मीन्स 10 किलोमीटर एक ही बार में जब हम पूरे चक्कर लगा पाए। सो और आई थिंक दैट बिकम्स योर वे ऑफ लिविंग। लाइक आप अगर बोलेंगे राजीव, तो आज भी मैं मैराथन दौड़ती हूँ 21 किलोमीटर्स की, 10 किलोमीटर्स की, और कंटिन्यूसली 2-3 सालों से मैं 100 डेज ऑफ चैलेंज में भी पार्टिसिपेट करती हूँ। सो दिस वाज वन थिंग व्हेन आई टॉक अबाउट द फिजिकली, हाउ इट मेड मी मोर stronger, and even mentally I would say it made me very, very strong, because it made me more responsible towards my own self, I think, towards my parents, towards my society, towards my team member, and above that, towards the country. I became very, very responsible, and I think this credit I give to my the kind of training which I had in defense, at AFTC, Air Force Technical College, Bangalore. It's a comprehensive training which they gave to us, and the training had physical training, and also to make you a better, best officer who can perform the best at any terrain, from glacier to desert, anywhere. And they also prepare you for contingency. So this is the, I think these are the foundation. And defense main foundation is integrity. So we talk about lot about loyalty, integrity. I think that became my foundation because I picked up at a very early stage. आप जहां भी काम करें, आप कॉर्पोरेट में करें या आप डिफेंस में काम करें, आई थिंक जो भी इनकी कोर वैल्यूज होते हैं, जहां आप सबसे पहले काम करते हैं, उन्हें आप बहुत जल्दी इम्बाइव करते हैं। तो मेरे साथ भी यही हुआ। आई थिंक वो इंटीग्रिटी वाली जो हम बात करते हैं और क्रेडिबिलिटी बनाने वाली, वो सब मैंने वहीं से सीखा। और आई थिंक जब मैंने वो फर्स्ट टाइम ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, उसके बाद मुझे लगा कि मैं खुली आंखों से मेरा देखा हुआ सपना पूरा हुआ। Over to you, राजीव। सही। मतलब ये आपको क्या ऐसा फील हो रहा था जैसे मिल्खा सिंह ने ब्लेजर जब इंडियन बैच के साथ में पहना होगा, इस टाइप की फीलिंग मेरे ख्याल से जब आपने यूनिफॉर्म पहना हो उस टाइप की आई होगी। अच्छा, ये जो सबसे इंटरेस्टिंग आपके जैसे कारगिल और पराक्रम जो है, ये हिस्ट्री में दर्ज हो चुका है और उसके साथ आपका भी नाम जुड़ा हुआ है फॉर्चुनेटली। तो कैसा लगता है कि वो क्या एक्सपीरियंस था? क्योंकि लोग आज भी जब उसके बारे में बात हम करते हैं, कारगिल के बारे में बात करते हैं, तो हम लोग तो उसको देखते हैं, टीवी पे देखते हैं, उस पे देखते हैं, लेकिन आपने तो बिल्कुल सामने से देखा, आप उसमें इन्वॉल्व हुई है, तो वो एक्सपीरियंस कैसा था आपका? बिल्कुल राजीव, पर उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी अपने यूनिफॉर्म का एक्सपीरियंस, क्योंकि आपने मिल्खा सिंह का नाम लिया। जो ब्लेजर वाला उनका एक्सपीरियंस था, बिल्कुल उसी का मैं आपको बताना चाहूंगी। यूनिफॉर्म जब मैंने पहली बार पहना और जब मैंने लास्ट बार पहना, फीलिंग सेम थी। क्योंकि क्या होता है, जब आप पहली बार पहनते हैं ना, देयर इज अ फीलिंग ऑफ प्राउड। आपको ये लगता है वाओ, आपके साथ में आपने यूनिफॉर्म पहनी, आपने रैंक लगाए हैं, बट उसके साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। आपके टीम मेंबर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपके एक अच्छे लीडर बनने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके कंधों पे आती है। और सच में आई मिस माई यूनिफॉर्म, but yes, luckily my husband is also working, serving, defense officer, so I see him in uniform every day. I feel that proud again, तो ये है बिल्कुल। नीली वर्दी वालों की बात ही अलग है। हमारी नीली वर्दी होती है एयरफोर्स में। Now coming to your second question about Kargil and Operation Parakram, I think my journey would have been incomplete without these two war, I think. And राजीव, आज भी जब मुझे कोई पूछता है इन वॉर्स के बारे में, एक नॉस्टैल्जिक फीलिंग होती है, प्लस गूज बम्प्स आ जाते हैं, बिकॉज जब मैंने इन वॉर में पार्टिसिपेट किया, आई वाज वेरी यंग। आप सोचिए कि जस्ट कॉलेज से निकल के डिफेंस में ज्वाइन किया, ट्रेनिंग खत्म हुई और मैं अपनी पहले यूनिट में आई, और उस समय कारगिल ऑलरेडी ऑन था।
सो आप ये जो एक्सपीरियंस मुझे मिला, that made me a strong professional and a strong person, I would say. Very good human being. I think defense forces are famous. You must be knowing that, you know, the team spirit. जो हम टीम स्पिरिट की बात करते हैं, बिकॉज यू कैन नॉट विन द वॉर विदाउट अ टीम. alone you can't do anything, right? And also, if the communication is not good, you know, the communication is broken, you can lose the war. So it is very important, the team spirit which I learned from there. मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगी कि आई वाज फ्लाइट कमांडर, एंड व्हेन दिस इंफॉर्मेशन ऑफ ऑपरेशन पराक्रम वॉर केम, पार्लियामेंट अटैक हुआ था 2001 में दिसंबर में. सो मेरे सीईओ ने, कमांडिंग ऑफिसर ने मुझे बुला के ऑर्डर्स दिए कि आपको ये करना है, इतनी मिसाइल्स प्रिपेयर करनी है. सो देन आई वेंट बैक टू माय फ्लाइट बोलते हैं हमारे ऑफिस को, एंड देयर आई टोल्ड माय वारंट ऑफिसर साहब, सुबेदार साहब जो मेरे थे, उनको मैंने बताया, वारंट ऑफिसर साहब को, कि रिकॉल एक्टिवेट कर दीजिए. रिकॉल प्लान इज दैट, यू नो, व्हेन यू हैव टू कॉल बैक एवरीवन कि भाई देश को आपकी जरूरत है, आप छुट्टी से वापस आइए इमीडिएटली, और आप एक जल्दी से अपने काम को स्टार्ट कर दीजिए. सो आपको मैं ये एग्जांपल इसलिए दे रही हूँ कि एवरीबडी इज अ लीडर इन डिफेंस फोर्स. आपको कुछ नहीं करना है, आपको बहुत कम बार ही उनको मोटिवेट करने की जरूरत है, अदरवाइज उनका मोटिवेशन हमेशा बहुत हाई होता है राजीव. इतना हाई होता है, आप सोचो कि अपनी जान की परवाह ना करते हुए भी वो देश के लिए अपनी जान निछावर कर देते हैं. तो मेरा ऑफिस बिल्कुल वारंट ऑफिसर साहब के ऑफिस के बगल में था, और मुझे सुनाई दे रहा था जो वो बात कर रहे थे. 2001 दिसंबर की बात है राजीव, और उन दिनों मोबाइल तो होते ही नहीं थे, लैंडलाइन भी लग्जरी होती थी किसी के घर में, मतलब बहुत कम लोगों के घर में लैंडलाइन हुआ करता था. एंड आई रिमेम्बर उन्होंने एक पीसीओ में फोन किया, और वहां से एक कोई कॉपल साहब को बुला रहे थे वो, तो उन्होंने उसको बोला कि भाई आ जाओ वापस, अब वो काम करने का दिन आ गया है जिसके लिए हमने ये वर्दी पहनी है. आप सोचिए, मेरे तो एकदम गूज़बम्प खड़े हो गए उस समय. मुझे लगा कि देखिए कितनी अच्छी टीम को मैं मतलब मैनेज कर रही हूँ, मेरे को इतना अच्छा फील हुआ. सो बहुत सारे लेसन्स थे जो मैंने कारगिल में और ऑपरेशन पराक्रम में सीखे, और वो उन्हें मैं अपने साथ में लेके चलती हूँ, और कॉर्पोरेट में भी उनको अप्लाई करती हूँ. अगर हम बात करें राजीव, जो लीडरशिप की हम बात करते हैं, जो आज हम इतना एम्पैथेटिक लीडरशिप की बात कर रहे हैं, वो मैंने डिफेंस फोर्सेस से ही सीखी. सर्वेंट लीडरशिप की जो हम बात करते हैं, या आज हम जो बात करते हैं पीपल लीडरशिप ओवर द पोजीशन लीडरशिप. सो अगर आपने रैंक कंधे पे लगा लिए, आप ऑफिसर हो, दैट डजंट मीन कि आप एक लीडर बन गए हो. आपको लीडर बनने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और आपको बहुत आपको उनको लीड करना पड़ता है विद द एग्जाम्पल. सो ये सारी चीजें जो मैंने वहां पे देखी, आई थिंक जो भी मैंने पर्सनल लेवल पे भी, क्योंकि अब ऑपरेशन पराक्रम के एक और बात मैं आपको बताऊं कि एक हफ्ते बाद ही मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, और मेरे हस्बैंड भी फॉरवर्ड बेस में मूव कर गए थे तब तक. सो उसके बाद पूरा 9 मंथ आई वॉज ऑल अलोन इन माई यूनिट, और 6 to 6 की ड्यूटी मैं किया करती थी. इट मेड मी अ स्ट्रॉन्ग वुमन. आई थिंक वो आज अभी नवरात्रे भी चल रहे हैं, आई थिंक हर लड़की को मैं बोलती हूँ कि एवरी गर्ल इज दुर्गा माता. और स्पेशली जब हम मतलब माँ बनने वाली स्टेज में आ जाते हैं, तो मैंने अपने आप में खुद ये ऑब्जर्व किया कि बड़ी हिम्मत आ गई, बड़ी ताकत आ गई थी इन दोनों वॉर के एक्सपीरियंस के बाद मुझ में. सो आई थिंक दिस इज व्हाट आई कैन शेयर. बहुत सारी चीजें शेयर करने के लिए, बट आई थिंक टाइम को देखते हुए आई वुड लाइक टू शेयर दीज मेजर थिंग्स विद यू. ओवर टू यू राजीव. बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा. और जैसा कि कहते हैं कि वी स्पोक अबाउट द हैप्पी थिंग्स, बट दे से एवरीथिंग कम्स एट ए कॉस्ट. तो एक महिला अधिकारी होने के साथ कुछ आपको काफी चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा होगा. और पर्सनल फ्रंट पर क्या चैलेंजेस आपको आए, क्योंकि एयरफोर्स में महिला का होना अपने आप में एक बड़ी बात थी, वहां पे आपको काफी चैलेंजेस भी सामने आए होंगे. एक्चुअली इतने चैलेंजेस आए नहीं जितना हम बात करते हैं, क्योंकि अब तो धीरे धीरे इवॉल्व हो रहा है एयरफोर्स और डिफेंस फोर्सेस. अभी तो बहुत ही अच्छी कंडीशन में है, इनफैक्ट जब मैंने भी ज्वाइन किया. बट आई थिंक मेन चैलेंज जो मैं बोलती हूँ, विच वी कैन इम्प्रोवाइज और इम्प्रूव ऑन, विच आई हैव सीन इन कॉर्पोरेट. जैसे जब मेरे बेटी हुई, तो उसके लिए आई हैड टू कॉल समबडी फ्रॉम माई होम कि भाई आके कोई मेरे साथ में बच्चे को देखे. तो ये क्रेच फैसिलिटी वगैरह जैसे हम बोलते हैं, दोज काइंड ऑफ फैसिलिटी अगर हमारे डिफेंस फोर्सेस में भी आ जाती हैं तो बहुत अच्छा है. अदरवाइज आई डोंट थिंक इट इज ऑल इक्वल. देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन. दैट इज व्हाट आई हैव सीन
I was gold medalist in the defense forces when in my training, and then again I was an exceptional officer in the we have a very esteemed inspection which we call DASI, Directorate of Air Headquarter Inspections. So I don't think ऐसा कोई बहुत ज्यादा challenges नहीं आए, बट यस ये थोड़ा बहुत चलता रहता है. नाउ आई एम आउट ऑफ डिफेंस फोर्सेस, हस्बैंड पोस्टिंग पे जाते रहते हैं, आई हैव टू मैनेज द चिल्ड्रन विद मी, बट आई थिंक इट्स ओके, इट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ. अच्छा, एक अभी आपने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आया है, अभी रिसेंटली आया है, जिसमें ये कहा गया है कि गर्ल्स भी अब एनडीए का एग्जाम दे सकती हैं. तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही अच्छा डिसीजन है, लॉन्ग अवेटेड डिसीजन था ये. और आई थिंक ना केवल, आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट जेंडर इक्वालिटी हियर और पैरिटी, बट आई थिंक इसमें क्या हो रहा है कि आप ये देखो, जो कॉर्पोरेट में हम कहते हैं एक सक्सेशन प्लानिंग होती है और आइडेंटिफिकेशन ऑफ हाई पोटेंशियल होता है, सो वो हम जल्दी क्यों कर देते हैं. उसी तरह से आई थिंक इट इज जस्ट इक्वल टू दैट ओनली, कि नाउ यू आर आइडेंटिफाइंग दोज ऑफिसर एट अर्ली स्टेज, एंड सेकेंडली यू आर गिविंग देम अ वंडरफुल वंडरफुल करियर. बिकॉज अभी क्या होता है, जो शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स होते हैं उन्हें अपना 10 साल 11 साल के बाद एक सेकंड करियर ऑप्शन देखना पड़ता है. बट इसमें अब क्या होगा कि हमारी गर्ल्स जो ऑफिसर्स बनेंगी वो परमानेंट कमीशन उनको मिलेगा डे 1 से ही, और वो अपना पूरा करियर पूरा प्लान कर सकती है डिफेंस फोर्सेस के साथ. और बहुत सारे ऑप्शंस उनके पास, तीनों ऑप्शंस ओपन रहेंगे, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के. एंड आई थिंक आई वुड लव माई चिल्ड्रन ऑल्सो टू ज्वाइन एनडीए. और बिल्कुल बहुत ही अच्छा डिसीजन है. एंड आई थिंक वी विल सी चेंज. आप देखिएगा फर्स्ट बैच अभी जब भी आएगा, अभी इन्होंने फॉर्म भरने शुरू कर दिए हैं. आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी अबाउट दिस. बहुत अच्छा जी. आप एक तो आप डिफेंस में रही, वहाँ के और इसमें जो वीमेंस विंग है उनके लिए भी अभी आप वीमेंस एम्पावरमेंट का काम कर रही है, एचआर का आप अपना काम कर रही हैं, वीमेंस के लिए और भी आप सारे काम कर रही हैं, अपनी जॉब भी कर रही हैं. तो इतना सब कुछ कैसे, टाइम मैनेजमेंट कैसे हो पाता है आपके लिए, पॉसिबल कैसे? आई थिंक टाइम मैनेजमेंट की जो आप बात कर रहे हैं वो तो मेरे को डिफेंस ने ही सिखा दिया था. सो स्टिल वो फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग हो चुकी है. आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग 4:30, अभी भी उठती हूँ. 2-3 घंटे का टाइम सुबह ही मिल जाता है. देन आई थिंक मंडे टू फ्राइडे तो ऑफिस में बिजी रहती हूँ, बट सैटरडे संडे 2-3 घंटे जरूर निकालती हूँ मैं, बिकॉज आई स्ट्रांगली फील that each and every woman who is independent, who is already who has achieved something in life, has a responsibility towards other women. So हमें दूसरी वुमेन्स को उनको उठाना है, उनके प्रति काम करना है. और ऐसी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो ये काम करती है, राजीव. एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट आई एम पार्ट ऑफ वुमेन विद विंग्स, बिकॉज वुमेन विद विंग्स ऐसा प्लेटफॉर्म है जो इंस्पायर कर रहा है इस समय, इनेबल कर रहा है, एम्पावर कर रहा है इतनी सारी वुमेन्स को. सो ये मुझे इसमें बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इनका जो मिशन है वो मेरे मिशन से है. मैं भी यही करना चाहती थी कि वुमेन के लिए कुछ काम करूं. और आई थिंक एवरी वुमेन शुड डू समथिंग टू फॉर हेल्पिंग अदर. सो ये डिफरेंट लेवल पे करते हैं. जैसे गर्ल्स और कॉलेज लेवल पे हम एक अवेयरनेस अलग से एक चलाते हैं, जिसमें अवेयरनेस सेशंस में करती हूँ और उनकी करियर काउंसलिंग करती हूँ जो एयरफोर्स में आना चाहते हैं या आर्मी डिफेंस में आना चाहते हैं. एंड उसके बाद एक मेंटरिंग सेशन अलग है, मेंटरिंग सेशन करती हूँ मैं गर्ल्स के लिए, या फिर मेरे जो पीयर्स हैं मैं उनके लिए मेंटरिंग सेशन करती हूँ. और इसके अलावा भी आई थिंक एक बहुत ही अच्छा लगता है कि आप किसी की जर्नी में कुछ वैल्यू ऐड कर पा रहे हो, उनको हिम्मत दे पा रहे हो. सो ये बहुत जरूरी है. सिमिलरली विकी यूपीएचआर, वुमेन इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, सो यहाँ पे भी बहुत सारे एचआर टॉपिक्स पे हम बात करते हैं. एंड आई थिंक आई एम वेरी फॉर्चुनेट टू बी पार्ट ऑफ बोथ ऑफ देम. सो करना चाहिए, आई थिंक हमें जरूर करना चाहिए. वो कहते हैं ना, अपने लिए जिए तो क्या जिए, हमें दूसरों के लिए भी जीना चाहिए. और बिल्कुल जिस सोसाइटी ने हमें इतना कुछ दिया है, वी हैव टू गिव देम बैक. सो ये मेरे विचार हैं, और इसीलिए मैं हमेशा से ही वुमेन एम्पावरमेंट के लिए कुछ ना कुछ करती आई हूँ. ओवर टू यू राजीव. राजीव, आप मुझे सुन पा रहे हैं? राजीव, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी.
लास्ट में केवल ये आपकी खबर के जो व्यूअर्स हैं उनके लिए आपका क्या मैसेज होगा? राजीव, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं दर्शकों को ये भी बता दूं कि आज राजीव की तबीयत ठीक नहीं है, 2-3 दिन से वो बीमार हैं। बट आपकी बहुत आभारी हूं मैं कि आप आज आए इंटरव्यू के लिए, यहाँ पे हम आपके दर्शकों से बात कर पा रहे हैं। एंड राजीव, मेरा यही आई थिंक मैं यही बोलना चाहूंगी सबको, ड्रीम बिग। बहुत जरूरी है कि हम खुली आंखों से सपने देखें और फिर उन सपनों को पूरा करने में जुड़ जाएं। मेहनत, मतलब मेरा तो यही मंत्र रहा है जिंदगी में, देयर इज नो सब्स्टिट्यूट टू हार्ड वर्क। और ये कहावत नहीं है, ये सच है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है हार्ड वर्क करना, बहुत इंपॉर्टेंट है जो भी आपका पैशन है उसको फॉलो करना। और एक ब्रिज होता है आपके सपनों के और आज के बीच में, जिसको हम डिसिप्लिन का ब्रिज कहते हैं। अपनी लाइफ में डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। और एक चीज जो मैं मानती हूँ वो ये है, कीप लर्निंग, बी अ लाइफ लॉन्ग स्टूडेंट। आप बस अपने आप को अपग्रेड करते जाइए, अपस्किल करते जाइए। जो भी नई चीजें आई हैं उन पे री इन्वेंट, जिसको हम कहते हैं ना कि जस्ट री इन्वेंट योरसेल्फ। और बहुत जरूरी है एक चीज, मैं सभी महिलाओं को भी जो इस समय शो को देख रही है उनको बोलना चाहूंगी कि सेल्फ लव इज वेरी इंपॉर्टेंट। गिव प्रायोरिटी टू योरसेल्फ। बहुत जरूरी है आप अपना ध्यान रखें, अपने हेल्थ का ध्यान रखें। अभी हमने कोविड टाइम में ये देखा है, तो ये बहुत जरूरी है। हम जब हम अच्छे रहेंगे तभी हम बाकियों का भी ध्यान रख सकेंगे। सो अपने ड्रीम्स को जरूर चेस कीजिए। एक सपना पूरा हो जाता है तो रुकना नहीं है, फिर दूसरा सपना देखिए, उसको पूरा कीजिए। तो यही कहना चाहूंगी मैं सारे व्यूअर्स को कि कुछ भी अचीव किया जा सकता है। स्काई इज द लिमिट इज माय मंत्रा। एंड आई थिंक बस चलते जाइए। जिंदगी को इतनी डिफिकल्ट नहीं है जिंदगी, जितना हम उसको समझते हैं और बनाते हैं। और आई थिंक सर्व सोसाइटी बहुत जरूरी है कि हम कुछ टाइम सोसाइटी को जरूर दें। और काइंडनेस और कंपैशन की जो हम बात करते हैं उनको हम सच में करें, अपने घर से शुरुआत करें और जरूर जरूर हम आगे बढ़ते जाएं ऐसे ही। सो थैंक यू राजीव। राजीव, ओवर टू यू। मेरे ख्याल से आपकी खबर के व्यूअर्स ने जो भी आपकी बातें उन्होंने सुनी होंगी, इसको अगर थोड़ा सा भी अगर उन्होंने अपनी लाइफ में थोड़ा सा भी उतार लिया, मेरे ख्याल से जो यूथ है उनके लिए बहुत ही अच्छा है। और आपने जो दूसरी बात बताई, जो वर्किंग है, ये नहीं कि अगर आपने कुछ अचीव कर लिया तो वो बस वही सब कुछ है। आपको लर्निंग स्टेज डे टू डे आपको कुछ ना कुछ सीखते ही रहना है, और सीखते रहने के साथ ही और आगे बढ़ते रहना। और सबसे बड़ी चीज, आगे बढ़ते रहने के साथ में लोगों को भी आगे बढ़ाते जाना है। जैसा कि अभी हमारे साथ में क्या नाम, डिम्पल रावत जी ने बताया, स्क्वाड्रन लीडर ने, कि हमें आगे भी बढ़ाना है। छुट्टियों के दिन में कंप्लीट छुट्टी नहीं मनानी है, किसी और के लिए भी काम करना है। तो ये अगर हम करते रहेंगे तो खुद को भी आगे बढ़ाएंगे। ऐसा नहीं कि आप दूसरों के ही लिए करते जा रहे हैं, उससे आपको बहुत कुछ जो एडवांटेज मिलते हैं, बहुत कुछ सुकून भी मिलता है, बहुत कुछ इंस्पिरेशन मिलता है, बहुत कुछ ऐसा भी होता है कि कुछ ऐसे भी लोग आते हैं जो आपको इंस्पायर करते हैं, विपरीत परिस्थितियों में काम करने को करते हैं। जैसे कि मुझे आज मैं नाम लेना चाहूंगा शेफाली जी का। मुझे नहीं लग रहा था कि आज का शो मैं कर पाऊंगा, लेकिन उन्होंने मोटिवेट किया। और आज आपकी खबर के व्यूअर्स जो इंटरव्यू देख पा रहे हैं स्क्वाड्रन लीडर डिम्पल रावत जी का, मैं बहुत ही खुश हूँ इस बात को लेके कि व्यूअर्स को एक बहुत ही अच्छी जानकारी भी मिल रही है, उनको इंस्पिरेशन भी मिल रही है। विपरीत परिस्थितियों में काम करने को, कैसे किया जाता है काम, ये सीखने को मिल रहा है। और कब तक काम करना, ये नहीं कि हमें अगर कुछ आ गया तो बस बहुत कुछ आ गया, सीखते भी जाना है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका डिम्पल रावत जी, आपका बहुत ही धन्यवाद। आपकी खबर के व्यूअर्स का धन्यवाद। वीमेन विद विंग्स का बहुत बहुत धन्यवाद, जो ऐसी ऐसी स्टोरीज लेकर सभी के सामने आ रहे हैं। और मैं फिर से कहूंगा, शेफाली जी कम से कम 50% के लिए तो काम कर रही हैं, वीमेंस के लिए काम कर रही हैं। और मुझे इंतजारी इस बात की है कि मेंस के लिए कभी कोई सामने आएगा, उनके लिए काम करेगा। बड़ी अच्छी बात है और मुझे बहुत अच्छा लगा। और दूसरा, फिर
हम नई स्टोरी के साथ में, नई इंस्पिरेशन के साथ में आपकी खबर के व्यूअर्स को, जो वीमेन विद विंग्स कर रही है काम, उसको साथ में लेके आएंगे। वैसे भी अगर कहीं कुछ भी अच्छा हो रहा है, इंस्पायरिंग हो रहा है, तो आपकी खबर ऐसा प्लेटफॉर्म है जो सभी के सामने कुछ ना कुछ नया लेकर आने का प्रयास करता रहेगा। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद डिम्पल रावत जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, वीमेन विद विंग्स का धन्यवाद, और फिर से हम एक साथ किसी अन्य स्टोरी पे आएंगे सामने। थैंक यू डिम्पल जी। Thank you so much, Rajiv ji. Take care. Bye bye. Good night.